Okay, so today we are starting this the constant voltage drop model. Okay, so what this model says, okay, so suppose you have, this is diode current ID, okay, and this is your VD. Okay, so according to this model, okay, we can replace the IV characteristics of this diode can be given in this way. Okay, where we what is the this is the applied voltage, okay, voltage across diode and current flowing through the diode. So voltage drop across this is called cutoff voltage. Okay, for example, we have a silicon. Okay, so then silicon, this voltage is equal to 0.7 volts. So if in a circuit you have a diode, okay, and it is in forward bias, that means current is flowing, okay, across this diode, then this diode can be replaced by a 0.7 volt battery. That means you can replace this diode by a 0.7 volt batteries. Okay, similarly, if it is in the reverse bias, okay, in reverse bias the current is 0. So that means in reverse bias, okay, when there is no current flowing this across this diode, then suppose this is your reverse bias, that is ID equals ID flowing through this is 0. Okay, in that case you can replace it by a open circuit. Okay, the current is not flowing. Okay, so अगर forward bias में है, okay, and for forward bias the voltage across diode should be greater than 0.7 volts. Okay, so अगर across diode 0.7 volts है, then you can replace circuit this diode by a battery. Okay, similarly, if it is a reverse bias, then there will be current 0. You can replace this diode by a open circuit. Okay, now question है कि diode forward bias भी है, but diode में से current flow नहीं हो रहा है. Okay, ID is 0. Suppose the diode is forward bias, but somewhere in the circuit there is open circuit. Because of that open circuit, if current is not flowing through diode. Okay, in that case, if current is 0 in forward bias, VD will be 0. That means it will be short circuit. Okay, we'll do some questions. So if it is forward bias and current is flowing, then 0.7 volts. Okay, it is forward bias, but current is not flowing because there is some break in somewhere else in the circuit. Okay, so then current is not flowing, then you have to take ideal characteristic. That's VD is equal to ID is equal to 0. That means VD is equal to 0. That means it's short circuit. Okay, so we'll do some problems, then you'll understand. This is clear? फॉरवर्ड बायस में बैटरी लेना है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट लेना है. ठीक है, 0.7 से अगर कम रहेगा तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना? हाँ, तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा. ओके, यस सर. 0.7 वोल्ट से बड़ा होगा, हाँ, तभी भी हम ऐसे ही बैटरी मतलब फॉरवर्ड बायस है मतलब 0.7 से ज्यादा है, इन दैट केस आल्सो वी विल रिप्लेस बाय बैटरी 0.7 वोल्ट. यस, और 0.7 से कम है तो ये इसको रिवर्स बायस मानेंगे हम लोग. ठीक है, दैट विल बी ओपन सर्किटेड. 0.7 से कम ड्रॉप हो रहा है, देन इट विल बी ओपन सर्किट. So now suppose we have one resistance, okay, and we have one diode. So its value is given 5 volts and the resistance is 1 kilo ohm. And it's asking, this is silicon diode. Okay, silicon बोलते ही आप समझना 0.7 है. Okay, so what is the current flowing in the circuit? Asking. So now you can, so it is forward bias. कैसे पता चलता है forward bias है? या तो तुम इसको ओपन कर, हाँ, या तो इसको ओपन करके देख लो. ओपन कर रहे हो, वैसे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव 5 है, ये 0.7 है, तो अज्यूम करते हैं कि फॉरवर्ड बायस ही है. वरना इसको ओपन करके देख लो. ओपन करके देखोगे तो 5 का वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, अगर इसको भी दो ही केस हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी फॉरवर्ड बायस और इट कैन बी रिवर्स बायस, और तो कोई केस होगा नहीं. ओके, अगर तुम मान रहे हो कि ये रिवर्स बायस में है तो इसको ओपन कर दो. तो ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है.
अब तुम बोल रहे हो कि ये रिवर्स बायस भी है और 5 वोल्टेज भी है, दैट इज नॉट ट्रू. ओके, so that means it is forward bias. Okay, ऐसे assume करते हैं. Suppose now this is 5 volts applying here. Now you say no, it is reverse bias. So make it reverse bias. It's open and then calculate voltage. Voltage coming 5 volts. Then it cannot be now reverse bias. That means that is our assumption is wrong. That means it is forward bias. Okay. So now you can replace. Okay, it's by battery of 0.7 volts, and this is 1 kilo ohm already given. Okay, so you can apply KVL. Okay, and you can calculate, you can apply, you can write. Okay, so -5 plus minus ID into 1 kilo ohm. Okay, 1000 ohm. Okay, and this is 0.7 equals to 0. Okay, so your ID will be 5 minus 0.7, 1000 ohm, 4.3 divided by 1000, that will give you 4.3 milliampere. Okay, now suppose I make it reverse bias. Okay, इसको मैं अगर reverse bias कर दूं, okay, तो अब क्या होगा? अब सर ओपन सर्किट की तरह काम करेगी. Okay, so this will become open circuit. Okay, so ID will be 0. Okay, and VD, the voltage across, if you say if it's VD, okay, so your VD will be 5 volts. And what will be VR? VR कितना होगा? 0. VR 0 volt होगा, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. Okay, so this is so we'll do one more problem, similar kind of. Okay, so इसको रब कर दो ना. Yes sir. So now we have one 8 volt battery. Now this is okay, silicon diode again, and voltage across is VD. This okay, and this is 2.2 kilo ohm, and this is VR. Simple case है. So find VD, okay, VR and ID. तो VD कितना हो जाएगा? VD कितना होगा इसमें? इस केस में VD कितना होगा? 0.7 सर. 0.7. Your VD will be 0.7. Okay, and then what about VD 0.7 हो गया, और ID कितना हो जाएगा? VR कितना हो जाएगा? VR निकाल सकते हैं क्या? 7.3 सर. 8 minus 0.7. 7.3. 7.3. 7.3. Okay, so VR कितना हो जाएगा? 8 minus 0.7, 7.3. Okay, and then if you want ID, तो ID के लिए क्या हो जाएगा? इसमें वोल्टेज पता ही है, रेजिस्टेंस पता ही है, तो ID कितना हो जाएगा? 7.3 डिवाइड बाय 2.2 किलो ओम. तो कितना आ रहा है ये? 3.32 milliampere. 3.32 milliampere. Okay, very good. Milliampere. So okay, so now we'll connect 2 diodes. Okay, this is diode, this is silicon, and we have now germanium. Okay, and here we have a resistance. So this is grounded, this is also say grounded, and this is 12 volt battery. Okay,
and this resistance is 5.6 kilo ohm. So you're asking calculate, okay, ID. First thing ID you have to calculate, and then you have to calculate V naught output. V naught you have to calculate. Okay. So now this silicon, so we know we can replace a battery 0.7 volts. Okay, you can, if you want to practice, you can replace the battery. I am directly writing. Okay, you assume this is a battery 0.7 volts. Okay, and this is 0.3. Okay, so I want V naught, so you can write KCL. Okay, minus 12. Okay, plus 0.7 plus 0.3. Okay, plus V naught equals to 0. So V naught will be 12 minus 1, 11 volts. Okay, now you know this. Now V naught, you can find the current. Current तो same ही आ रहा है इधर से. So Yes sir. current will be Approx 2 milliampere आएगा. 11 divided by 5.6 kilo ohm. Okay, so इसका आंसर 1.96 yes, 2 milliampere आ रहा है approx. 1.96 milliampere. ठीक है. अभी इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं डायोड को. अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. ओके, तो ये भी सिलिकॉन ही है, अभी दोनों सिलिकॉन है. आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में निकालो तुमको से ये VD1 है, VD1, this is VD2, obviously VD2. Okay, and then this is V0. So you have to calculate VD1. Okay, VD1, VD2 and V0 values. करंट भी कैलकुलेट करो, करंट कितना आएगा. तो अब क्या होगा, अब की ये सर्किट में क्या हो जाएगा, ये तो आपका फॉरवर्ड बायस है. ठीक है, पर ये रिवर्स बायस है. तो रिवर्स बायस होते ही क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ये ओपन हो गया. ठीक है, ये ओपन होते ही इसकी कहानी खत्म हो गई, यहाँ करंट है ही नहीं, तो आपका वी आउटपुट तो जीरो आ गया. ठीक है, नाउ ये VD2 है, VD2. अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ये था फॉरवर्ड बायस. अब फॉरवर्ड बायस है तो इसको हम ओपन सर्किट तो कर नहीं सकते हैं, है फॉरवर्ड बायस, पर इसमें करंट फ्लो, करंट तो जीरो, करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो अब यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी आइडियल डायोड की तो काम करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट. ओके, दिस विल बिकम नाउ शॉर्ट सर्किट. ओके, सो नाउ होल द वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो सारी कहाँ ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ पे. ये तुम लिख दो, केवीएल लिख दो. केवीएल कैसे लिखते हैं, वी नॉट तो जीरो आया हमारे पास में. ओके, केवीएल -12. ओके, then suppose it is VD1 plus VD1, okay, plus VD2, okay, and plus V0 equals to 0. So VD2 will be 12 minus VD1, okay, minus V0. Okay, now VD1 will be 0 and this is also 0. So सारा वोल्टेज जो है वो आके आपका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो कुछ है ही नहीं. तो ये 12 है तो ये 12 है. ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है. VD1 भी कोई वोल्टेज नहीं लेगा सर. हैं, VD1 भी कोई वोल्टेज नहीं लेगा सर. कोई वोल्टेज लेगा नहीं, क्योंकि अब कुछ में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है. अब यहाँ से हम यहाँ आ गए, करंट फ्लो नहीं कर, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है. फॉरवर्ड बायस भी हो और वो करंट भी नहीं ले रहा हो, तो फिर वो जीरो करना पड़ेगा उसको. ठीक है, क्लियर, आगे चले. Yes sir. Now we'll do some exam questions. This is IIT JEM. (2020) question. So they have given diode. Okay. Here one we have one resistance.
Okay, resistance value given 100 kilo ohm. This is your silicon and this is your germanium. Okay, and the voltage is given 10 volts. 10 volts. Okay, so you can write, you can replace 10 volts है तो उसको बैटरी बना सकते हैं 10 volts. Okay, so you're asking what is the current flowing across I, what is current I flowing, right is flowing. कैसे करेंगे इसको, बी ये सिलिकन है तो ये यहाँ अगर इस What is current flowing through? जर्मेनियम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस व्हाट इज द क्वेश्चन, Question क्या है? What is current flowing through? हाँ थ्रो सर्किट रजिस्टर कर दो अगर करना है तो, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर. ओके, ये कर दो कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो अभी सर्किट में क्या है कि ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, ठीक है. अब ये 0.7 है और ये क्या है 0.3 है. जैसे ही हम इसको वोल्टेज स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका वोल्टेज कम है ना, वोल्टेज ड्रॉप कम Yes, है. sir. और एक बार ये वोल्टेज कनेक्ट होना शुरू हो गया तो ये फिर ओपन हो जाएगा. ठीक है, दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. अगर दोनों एक साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 माइनस 0.7 कितना जाएगा 9.3, और यहाँ पे कितना जाएगा 10 माइनस 0.3 9.7. तो दो अलग अलग वोल्टेज तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि वोल्टेज तो से अगर पैरेलल है तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए. तो फिर क्या होगा, जो करंट ऑलवेज Sir, एक बार repeat कीजिए. ये आपका 10 वोल्ट है, ठीक है. अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो 0.7 ड्रॉप हो गया, यहाँ कितना आया 9.3, ठीक है. 9.3. और यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, दोनों से फ्लो कर रहा है 9.7. तो 9.7. अब एक ही पॉइंट का पोटेंशियल तो अलग तो नहीं हो सकता ना. तो Yes. ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि जो पहले कनेक्ट करना शुरू हो गया कर गया, एक बार शुरू हो गया वही कनेक्ट करेगा. तो ये 0.3 ये इसका कम वोल्टेज है तो स्टार्ट करते ही ये पहले कनेक्ट शुरू हो जाएगा. जैसे ही कनेक्ट करना शुरू हो जाएगा दिस विल बी एक्ट एज ओपन सर्किट. यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा. ओके, तो करंट विल फ्लो नाउ दिस वे. ओके, सो अब कितना करंट हो जाएगा, सो करंट विल बी आई इक्वल टू 10 माइनस 0.3 अपॉन 100 किलो ओम, तो कितना जाएगा 93 माइक्रो एम्पियर. किलो ओम. ओके, सो 93 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा क्वेश्चन आंसर. सर 9.7 आएगा ना? नहीं 9.7 आएगा, सॉरी अरे सॉरी सर, यस 9.7 9.7 आएगा. 97 correct. Thank you. Okay, now we will solve some exam. One question came in GATE EC, okay, not physics. Okay. So in this question, so this is GATE EC question. Okay, they have given one diode. Okay, and across this diode we have one resistor. Okay, of 2 kilo ohm. And this is silicon diode, so 0.7. Here we have battery 2 volts, and here we have resistance 6 kilo ohm. So it's asking what is the current flowing I through 6 kilo ohm. Okay, कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो पता करना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं है. लग तो रहा है फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, पर एक बार चेक कर लो फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं है. तो फॉरवर्ड बायस कैसे चेक करते हैं, सर वोल्टेज देख लेते हैं क्रॉस. some asking Gurlink or what she asking 97 micro ampere, just 97 micro ampere ये आंसर. Okay, previous question 97 micro ampere. Okay, now this 0.0 this 2 volts, so ये ओपन है कि नहीं है बताओ. सर नहीं है सर.
ये क्या है, अगर if I make it open, okay, and if I calculate voltage across this one, this become 2 plus 6 8, okay, so करंट कितना हो जाएगा, voltage across 2 किलो ओम कितना चाहिए, voltage across 2 किलो ओम, this become 8, okay, so 2 upon 8 into 2, okay, so this become 1.1 0.4 by 1/2 sir. 1 by 2, that is 0.5 volts, okay, Yes sir. so 0.5 cannot make it conduct. सर ये कैसे किया आपने? भी ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला हमने, भी सपोज यहाँ पे यही सर्किट है, ठीक है ना, तो मैंने पता कि यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और इतना फिर मैंने डायोड लगाया, तो अगर पता है वोल्टेज कितना लगेगा, तो वी कैन सी ना डायोड इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग, ओके, सो इसे डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, somebody writing anything chat, okay Gulin, I will take your question later, okay, so now this is not conducting, तो क्या हो जाएगा करंट, तो आई कितना हो जाएगा, व्हाट इज आई, 2 upon 8 1 upon 4, okay, this is kilo ohm, 8 kilo ohm, okay, so this will become now 0.25 milliampere, okay, so this question came in GATE EC. सर हाँ मैं इसी समझ नहीं। हाँ बोलिए, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है नहीं सर। भाई, यहाँ पे एक हमारा मुझे भी नहीं है। भाई डायोड लगा हुआ है, ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो पहले ये पता करना डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में है कि नहीं है, तो कंडक्टिंग स्टेट के लिए फॉरवर्ड बायस है कि नहीं है, तो इस पे कितना होना चाहिए वोल्टेज, एटलीस्ट 0.7 तो होना ही चाहिए इसके लिए, ठीक है, हाँ सर। तो मैंने इसको हटा दिया, मैंने देख लिया यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पे जब वोल्टेज निकाला तो 0.5 वोल्ट ही आ रहा है, ओके, दैट मींस दिस मच वोल्टेज इज नॉट सफिशिएंट टू मेक इट कंडक्ट, तो ये क्या, ये ओपन है, अगर वो नहीं वोल्टेज है तो ओपन है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो बी आइदर इट इज कंडक्टिंग और इट इज नॉट कंडक्टिंग, okay, so if it is not conducting that means not if it is not forward bias that is in reverse bias, okay, so अभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसमें तो ओपन है, ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, अब करंट फ्लो करेगा नहीं, यहाँ से जो भी करंट आएगा यहीं से फ्लो करेगा, तो ये क्या, अब टोटल करंट कितना हो गया, 8 किलो ओम्स हो गया, ओके, टोटल वोल्टेज पहले हमने निकाला, इसका 0.5 आया, ओके, सो इट इज नॉट सफिशिएंट, सो नाउ करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 2 by divided by 8 1 by 4 किलो ओम 0.25 मिली एम्पीयर, यस सर अगर ये कहते ज्यादा आता फिर हमें क्या नाम है, ये कहते ये फिर हमारा गलत हो जाता ना सर, अगर वो ज्यादा आता तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता, ओके, सो फिर क्या नाम है, बैटरी आ जाता, ठीक है, वो बैटरी आ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सर हर प्रॉब्लम में हम ये चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? करके देखो, सब में करके देख रहे हैं भाई, सब में कौन सा क्वेश्चन नहीं करके, अभी उससे पहले भी करके दिखाया था, ये किया था क्वेश्चन, उसमें भी करके दिखा था, सारे क्वेश्चन में तुम, हाँ सर अगर ये कंडक्ट कर रहा होता हाँ तो क्या हम लोग जो 2 किलो ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसको सर मतलब पैरेलल में कनेक्ट करके 0 मान के सॉल्व करते हैं, उसको इग्नोर करके सॉल्व करते हैं, या पूरा का पूरा, यहाँ तो बैटरी आ जाता, ठीक है, और फिर वो केवीएल कैसे लगा के देखते हैं कि सर्किट में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है सर। आप पिछले जो क्वेश्चन कराया है उसमें भी लगा के देखो, क्योंकि कल जो क्लास थी उसमें तो वो उसको VD 0 ही चाहिए था, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के लिए, ठीक है, ज्यादा चाहिए नहीं, करंट फ्लो कर रहा है मतलब कनेक्टिंग है, अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो नाउ अब कुछ नेट में क्वेश्चंस आए हैं, विल चेक दैट वन, नेट एग्जाम में, भी डायोड के क्वेश्चंस जनरली बहुत इजी आते हैं, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है आईडी फ्लो कर रहा है, ठीक है, द सर्किट इज गिवन बाय VD स्क्वायर प्लस 2VD, ओके, फॉर VD ग्रेटर देन 0 और 0 है फॉर VD, ये कंडीशन दे रखी है, अगर VD ग्रेटर देन 0 है और सर्किट दे रखा है मेरा
दिस इज 1 ohm रेजिस्टेंस है, okay, this is my VD. So he's asking, okay, what is the value of VD? What is the value of VD? And 1 ohm resistance is flowing across this one. Okay, so VD की वैल्यू पूछ रहा है और करंट दे दिया है, करंट दे दिया है, ठीक है, और VD पूछ रहा है। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हमको वो केस तो निकालना नहीं है ओपन सर्किट वाला, हम मान रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज नॉट जीरो। ओके, तो VD की वैल्यू क्या है? तो ये बोल रहा है करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो VD नेगेटिव है। ओके, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस तो ओपन सर्किट है, उसमें VD नेगेटिव आ रहा है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वो केस हमको दिख रहा नहीं है। ये बोल रहा है करंट फ्लो कर रहा है, तब VD की वैल्यू कितना है, ID दे दिया है हमको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हम इसमें KCL लगा देंगे, ठीक है। तो KCL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -10, ओके, ID करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, सो ID into 1 ohm, okay, plus VD. VD is greater than 0. Okay, so now ID value is given. Okay, so I want VD, so my VD will be what, -10 plus ID value is given this one. Okay, this ID is capital, this को VD square, सर हम पिछले सर्किट के तरह 0.7 ऐसा क्यों नहीं ले रहे VD हैं? square plus 2VD plus VD equals to 0. Okay, तो ये क्या अपनी इक्वेशन बन गया, VD स्क्वायर प्लस 3VD प्लस -10 इक्वल्स टू 0। तो VD का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 2 -5 2 वोल्ट सर, 2 वोल्ट। VD की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ओके, यस VD की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमको। सर 2 आएगी सर, कितना आएगा सर 2 2 वोल्ट। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। भैया अगर करंट फ्लो कर रहा है तब इतना VD कितना है, तो हम मान रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है तो VD कितना है। करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो VD पता ही रहता है कितना VD आएगा, करंट फ्लो कर रहा है तब VD कितना है। सर तो बोल रहा है कि VD नेगेटिव है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, 0 है तो वो नेगेटिव है। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये बनाया क्वेश्चन ऐसा ही है, तो हमको जैसा बनाया है वैसे सॉल्व करना है। तो नाउ इज आस्किंग व्हाट इज VD वैल्यू, सो VD कितना हो जाएगा, इक्वेशन है कितना हो जाएगा, -B स्क्वायर 4AC, ये ऐसे करते हैं ना, 9 - 4 10 40 4, ओके, आई थिंक सर को सुना ही एंड देन 2, क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है क्या, VD स्क्वायर प्लस 3VD -10, ओके, सो -3 प्लस -4AC 40, ओके, अपॉन 2। तो इसका क्वेश्चन का क्या आएगा, एक तो आएगा -3, ओके, प्लस 7 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा, ओके, और एक आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव आंसर हमको लेना ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपके नेट का क्वेश्चन, ये नेट में आया, ईयर पता नहीं मुझे, नेट GRF, आंसर इज 2 वोल्ट। क्लियर है ये? कंचन, हाँ बोलो, यू आर नॉट ऑडिबल। सर एम आई ऑडिबल नाउ? कोई भी ऑडिबल नहीं है क्या? हाँ सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, यस, हेलो। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ बोलो, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है सर ये? इस केस में हमें हाँ नहीं सर, इसमें
एक डाउट है, पिछले सारे केस में हमने वीडी को रिप्लेस किया था ना, इस केस में हमें वैल्यू निकालनी है इसलिए ऐसा किया क्या हमने? इस केस में वो बता नहीं रहा, बोल नहीं रहा कि ये वो जो स्टैंडर्ड सिलिकॉन है जर्मनी सैंपल कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है एक ये कंडीशन दे दी है, अगर करंट सर्किट पे करंट फ्लो कर रहा है तो वीडी पॉजिटिव है, ठीक है। सर्किट पे करंट जीरो है तो वीडी नेगेटिव है। तो ये बोल रहा है, तो हम मान रहे हैं, हम पहला कैसे लेते हैं, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो हमने उसको निकाल के वीडी की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है क्या करंट फ्लो हाँ कर रहा है हाँ ऐसा? हाँ हाँ, बस करंट का वैल्यू दे रखा है, ये करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है ना ये, और बोल रहा है वीडी वीडी निकालो बस। तो क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है तो ठीक है, इसको ऐसा आइडियल की तरह नहीं करना है हमको, ये 0.7 और 0.3 लेके, मतलब सर ये एक्सप्रेशन दे और क्वेश्चन में ऐसा भी मेंशन है कि करंट फ्लो करना है वो केस कंसीडर करो, तो हमने फर्स्ट केस ली। भी एक आईडी दे रखा है और पूछता है द वैल्यू ऑफ वीडी इन द सर्किट इज, बस इतना क्वेश्चन है, ये दे दिया है और पूछा है द वैल्यू ऑफ वीडी इन द सर्किट इज, तो उसका यही तरीका निकालने का, ठीक है। ओके, सेकंड केस हमने क्यों नहीं दी, तो वीडी इज लेस देन और इक्वल टू देन आईडी उससे हमारा उसने दे दिया है कि वीडी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर वो वीडी इक्वल टू जीरो होगा या नेगेटिव होगा तो वो हम केस करनी यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं, करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। आईडी जीरो मान के कैसे करेंगे हम लोग, वो हमको पता नहीं कि ओपन सर्किट है वो क्या सर्किट है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसी से निकल जा रहा है, फर्स्ट केस से निकल जा रहा है, ठीक है। सेकंड केस में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आई जीरो ले लेंगे तो कैसे वो उसको सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके ओके सर। भी कई बार क्वेश्चंस भी आई हैव सीन क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनेशन में गलत डिजाइन होते हैं, ठीक है, या फिर अनक्लियर होते हैं, तो हमको लगता है रियली में तो ऐसा हो नहीं सकता है, और वो क्वेश्चन है अजम्पशन मान के वो। Now, see one question from NET December 2007. NET December 2017. Okay. And this is 1 kilo ohm. And this is diode. Okay. This is 1 kilo ohm, 10 volts. Okay. So I current is flowing here. Say I1 is this I1, and here current is flowing ID1, ID2. Okay, and this is my V output. Okay, so they are asking what is the value of I1 plus ID1, इसका वैल्यू कितना है सर्किट में, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे, ये सिलिकॉन दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0.7 दे रखा है, 0.7 दोनों। हाँ, तो हमको निकालना है क्या है, यहाँ से ये आई आ रहा है, अब दोनों सिमिलर हैं, बोथ आर सिमिलर, प्रॉपर्ली, यस। So now these diodes are similar, that means they will take half of current. Okay, that means my एक तो बात पता चल गई, ID1 equal to ID2 equal to I1 by 2. Okay, now what is the value of I1? So I1 का वैल्यू तो यहाँ से सर्किट से पता चल ही जाएगा, तो I1 कितना हो जाएगा, 9.3 मिलियन। ओके, 10 minus 0.7 upon 1000. Okay, this become 9.3, okay, upon 1000, so 9.3 milliampere. और फिर ये कितना आईडी कितना हो जाएगा, 9.3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, दिस बिकम 4, ओके, 6.5, ओके, मिलियम्पेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है I1 प्लस ID1 कितना है, दोनों को ऐड कर दो, सो दिस 9.3 हो जाएगा 5, 9, 13.95 milliampere should be answer. Let me check the answer.
हाँ ये आंसर पूछा है, बस इतना ही आंसर है। सर हम्म सर अगर ये हमारे करंट जो है मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे डायोड लगे होते हम्म तो किस तरह से डिवाइड होते करंट्स? केवल जर्मेनियम से ही पास हो जाता? तो शायद जर्मनी से पास होता है पहले, क्योंकि जर्मनी लगाया है तो उसमें आगे क्रॉस होता ही नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, वो भी हाँ पैरेलल था ना, सर, पैरेलल था ना पिछली बार भी। यस सर, अभी यस, भी पैरेलल ही है, सेम ही होता है, जर्मनी यस से सर। पास, जर्मनी से पास हो जाता है। ठीक है, डायोड में कभी कभी कुछ कुछ क्लियर नहीं है तो अज्यूम करके देख लो कि ये ओपन सर्किट है यार, अज्यूम करके देख लो, फिर देखो जो आंसर आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम्हारा अजम्पशन सही है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अजम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, एक नेट दिसंबर 2014 में क्वेश्चन आया है जैसा क्वेश्चन पहले ही किया था वैसा का वैसे आया है। करंट दे दिया इस बार, करंट इज गिवन V minus 0.7, okay, divide by 500, okay, for V greater than 0.7, okay, otherwise current is 0 for V less than 0.7, and what is V? V हमको सर्किट दे दिया है 10 वोल्ट सर्किट है। सर ये इक्वेशन क्या लिखी है? 500 ओके सर, ओके। V minus 0.7, 5 V minus 0.7 अपॉन 500 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, एम्पियर ये, ठीक है, then it is given 1 kilo ohm, and then this diode, here one diode given here, and the voltage across diode is V. Okay, so you asking what is the value of V? Okay, तो कैसे करना पड़ेगा इसको? What is the value? Just let me check the questions क्या पूछ रहा है। Okay, so we know करंट मिली एम्पियर में, एम्पियर में सर? करंट ये एम्पियर में सर? करंट ये देख चेक 3.8 minus 0.7 and this is 500 तो ये यहाँ से मिली एम्पियर में आएगा आंसर, मिली एम्पियर में आएगा, मिली एम्पियर में। ओके सर। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आप निकालो, तो दोस्तों सर्किट में, अब क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा पूछ रहा है। देखो ये वोल्टेज दे दिया इसने, ठीक है, तो ये करंट पूछ सर्किट में करंट पूछ रहा है, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ओके, सर्किट में अब पूछ रहा है सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में करंट फ्लो का ये वाला केस है। ठीक है, तो ये क्या है, 0.7 है, तो इसको 0.7 मान के, ओके, सर्किट में करंट निकाल लो, कितना सर्किट में कितना करंट आ रहा है निकाल लो। या फिर ऐसा करो, पहले ये देखो कि ना ये जो V है वो 0.7 से बड़ा है कि नहीं है। अगर V का 0.7 से बड़ा है तो करंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट विल अप्लाई KCL, okay, so minus 4.9 million के। so 10, okay, now minus current, okay, current कितना है, V minus 0.7 upon 5, okay, and this is my V, okay, equals to 0, so into R, 5 and V minus this is current into R 1000, -10 आएगा ना, एक मिनट -10 चेक करने दो मुझे। सो दिस बिकम कैंसिल हो गया, इससे ये 2 हो गया, सो 10 minus 2V plus 1.4 plus V equals to 0, so V equals to, okay, 10, KVL में फर्स्ट -10 आएगा ना? ये माइनस आएगा, ठीक है, 10 minus 1.4, सर -10 आएगा। तो कितना आ रहा है ये 10 minus 1.4 कितना आ रहा है, 10 minus 1.4 0.6 हाँ 8.6, ठीक है। अब साइन का कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सर ये प्लस, हाँ सर ठीक है, प्लस होगा और -10 पहले। नेगेटिव नहीं होगा सर? be -10 then it is current I plus, okay, then plus current V minus 0, ठीक है, and then again plus, ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया प्लस V
ओके, और ये हो गया हमारा 2v माइनस 1.4. Okay, so this become how much now? 11.4, 11.43. So my v will be 11.4 divided by 3. Okay, so 3.8 volts. Okay, so now this is 3.8 volts. Okay, so current कितना हो जाएगा ये वाला? तो current कितना हो जाएगा मेरा? I v कितना 3.8 volts, 0.7, and okay, so this become 3.1 divided by 500 और ये आंसर आ रहा है मेरा 6.2 मिली एम्पियर. 6.2 मिली एम्पियर. एक बार चेक कर लो. यस सर, यही आ रहा है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन तो एक्चुअली ये गेट में आया था, फिजिक्स वालों ने वहीं से उठाए क्वेश्चन डाल के अपने एग्जाम में डाल दिया. इसी में आया था. ठीक है. सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग. चेक. सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके नेट में, ये भी जस्ट में आया है अभी. V input R1 diode. ठीक है. V1, V2, and this resistance is given R2. This is R1. Okay. Now you're asking what is the maximum value? Okay. V input is given. V input. This is V input. V input is given as V naught sin omega t. Okay. So it's saying what is the maximum maximum value of V output? What is the maximum value of V output? कितना होगा? ठीक है. तो now this is sine wave. Okay, this is sine wave. तो ये क्या करेगा? इस तरह की वेव है. पॉजिटिव नेगेटिव. यस सर. V इनपुट. ओके, सो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? V m से V max साइन है with t with omega t. Okay, so and one more condition is given that your this V naught is greater than V1. जो V यहाँ पे दे रखा है, बायसिंग दे रखी है आपकी, ये बायसिंग दे रखी है, इससे ज्यादा है. ये जो इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है साइन वेव का, इनकमिंग साइन वेव का, ओके, वो V1 बायसिंग से ज्यादा है, ये दे रखा है. ठीक है. और भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, पर इसी से हम काम कर लेंगे. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा. तो मैक्सिमम, अब जैसे जब ये मैक्सिमम आएगा तभी यहाँ मैक्सिमम आउटपुट आएगा. ठीक है. सेकंड केस में तो ये रिवर्स है, तो वो आउटपुट जो माइनस आएगा वो तो मिनिमम होगा. तो मैक्सिमम आउटपुट कितना आएगा? तो सपोज हियर जब ये Vm है, सपोज दिस इज व्हेन इट इज V max. ओके, तो यहाँ पे ये कितना है? तो यहाँ पे ये 0.7 सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन इज गिवन, तो ये 0.7 है. ठीक है. तो अब इस केस में V आउटपुट कितना आएगा बताओ? ये V max है. ओके सर V1 प्लस 0.7. हाँ, और यहाँ पे भी यहाँ पे R1 भी दे रखा है. ओके, अब बताओ ये सर्किट में V नॉट कितना है बताओ? ये इसको बैटरी से रिप्लेस कर दो, ये बैटरी बना दो इसको. V1 प्लस 0.7. V1 भी 0.7 तो आ रहा है सर्किट में. यहाँ से ये V max आ रहा है, V max आता है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये 0.7 हो गया. ठीक है, क्योंकि ये V max V1 से ज्यादा है. V1 इसको रिवर्स बायस कर रहा था. क्वेश्चन क्लियर है? ये डायोड बना हुआ मेरा, ये डायोड बना हुआ है. ठीक है, उल्टा था. अब ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है. ठीक है, पर ये V max क्या है, जो V नॉट जिसको बोलते हैं, वो इससे ज्यादा है, वो इससे V1 ज्यादा है, तो ये इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा. तो फॉरवर्ड बायस करते ये बैटरी बन गया. ठीक है. अब बताओ, देखो एक अब ये V आउटपुट कितना है? एक तो 0.7 ऐड होगा
केवीएल लगाएंगे तो एक यहाँ से भी तो आ रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं केसीएल लगाऊं तो यहाँ पे कितना आएगा वोल्टेज, V1 R1 प्लस R2 इंटू R2 आएगा, क्या आएगा, यस सर। ये वोल्टेज भी तो आएगा इस सर्किट से, तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा 0.7 प्लस V1 R1 प्लस R2 इंटू R2, ओके, V max आउटपुट, ओके, सो आउटपुट मैक्स। सर प्लस Vmax नहीं आएगा, ऊपर के सर्किट में Vmax प्लस 0.7 ऐसा आएगा ना, ऊपर के पोर्शन में Vmax प्लस 0.7। ये Vmax का काम क्या है, इसको पॉजिटिव करना, ये इसको फॉरवर्ड बायस करना, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस केस में, मैक्सिमम केस में जब मैक्सिमम है तो ये बैटरी हो गया। अब हमको निकालना है V आउटपुट निकालना है, तो मैं इसी सर्किट में अपना केवीएल लगा दूंगा, तो V आउटपुट, ये बैटरी है, V आउटपुट क्या है यहाँ से लगा लो, तो V आउटपुट इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, तो सीधे हो जाएगा 0.7 प्लस V1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। हाँ सर इनपुट वोल्टेज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ डायोड फॉरवर्ड बायस करना, इतना ही इनपुट वोल्टेज का। हमको तो सर्किट में केवी लगाना ना, ये क्लोज सर्किट ही है ना, तो ये तो क्लोज सर्किट ही है, ठीक है। हमको इस सर्किट में हमको पता चल रहा है हमारा वैसे भी कैसे होता है, यहाँ वोल्टेज कितना है, अभी यहाँ यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ से इतना वोल्टेज कितना है, इतना कितना वोल्टेज कितना है, उसने तो अपना काम कर दिया ना, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा गेट में आया था, गेट ईसी में आया था, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब एग्जाम के क्वेश्चन करने से क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट ज्यादा धीरे धीरे शार्प होने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे रखा होता है, तो हम अपने कंसेप्ट को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है rather than कहीं से इधर उठा के करना, ठीक है। सो नाउ ये V0, this question came in gate EC, okay, so V input and then this given 1 kilo ohm resistance, okay, there is one diode and this is a battery 2 volts and this is okay, and your V1 is 5 sin omega t, okay, so you're asking find minimum and find V input है, V input 5 sin omega t, find maximum and minimum value of V0, okay, so maximum minimum value का V0 निकालना हमको, ठीक है, कैसे निकालेंगे, निकालो तुम लोग, निकालो, अभी भी क्वेश्चन किया हमने, निकालो अभी कैसे करेंगे इसको। सर वो रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम सर उसके ऊपर सर वीन के साथ कितना है, ये भी 1 किलो ओम ही है, तो मिनिमम कब आएगा, जब ये रिवर्स होगा, ठीक है, यस सर। दिस इज 5, तो जब ये जब रिवर्स होगा, रिवर्स में मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जब ये रिवर्स होगा तब तो हाँ, सर रिवर्स होने लगेगा, ठीक है, तब ये ठीक है तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पहले मिनिमम वाला केस ले रहा हूँ, मिनिमम वाला, जब मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, सर मिनिमम ड्यूरिंग नेगेटिव, ये मिनिमम आएगा ना? हाँ, नेगेटिव टाइम पे ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सेम है, तो ये पॉइंट कितना है, -5 वोल्ट है, तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी, -5 वोल्ट आ गई, मिनिमम V0 कितना आ गया, -5 वोल्ट, क्लियर है। खत्म हो गया, -5 वोल्ट,
भी अगर ये डायोड रिवर्स वाइज में चला गया, यहाँ 2 वोल्ट है, वहाँ 5 वोल्ट, -5 वोल्ट है, तो ये रिवर्स वाइज में चला गया, ठीक है। अब रिवर्स वाइज में चला गया तो यहाँ पे ये सारा वोल्टेज आके यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ये तो सर्किट हट ही गया, ये तो ये तो है ही नहीं। तो करंट यहाँ जो यहाँ पर वोल्टेज है वो यहाँ पर वोल्टेज -5 वोल्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो मिनिमम V0 है, ये वाला V0 दैट इज इक्वल टू -5 वोल्ट। अब मैक्सिमम केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम केस में कैसे? सर इनपुट वोल्टेज 5 है 2.7 इसलिए वहाँ 5 आएगा ना। हाँ, इनपुट माइनस मिनिमम वैल्यू -5 है ना, -5 ही है, तो ये तो हट गया यहाँ सर्किट में। लेकिन सर बीच में रेजिस्टर है ना, वो कुछ तो चेंज करेगा ना। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, रेजिस्टेंस 0, वही तो इतने करा है ना हमने, आउटपुट ये ओपन हो गया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसमें तो ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। सर उस रेजिस्टर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वी इन के बगल में जो रेजिस्टर है ये ना, वाला 1 किलो, ये वाला ना, नहीं वी इन के बगल में ये वाला वी इन 1 किलो। दोनों तो 1 किलो में है। हाँ, दोनों में करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, अभी ओपन कर दिया तो ये ना यहाँ से करंट, दोनों में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो सीधा इनपुट है ये उठा के यहाँ आ गया, ये यहाँ पे करंट वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है यहाँ ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो ये उठ के सीधा यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये -5 है तो मिनिमम कितना आएगा, -5 तक आएगा। तो मिनिमम वैल्यू हो V0 कितना है, -5। ओके ना, मैक्स में क्या करोगे, मैक्स निकालने के लिए, मैक्स सपोज ये 5 है, सपोज V मैक्स सही है, ये V मैक्स है, ओके। तो कैसे करोगे अभी इसको, तो और ये V आउट मैक्स है ना, हमको ये निकालना है, V आउट मैक्स निकालना है। तो V मैक्स V इनपुट मैक्स है ना, V इनपुट का मैक्स है, V इनपुट मैक्स। सो V इनपुट मैक्स कितना, 5, सीधे डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 है, 5 माइनस V आउटपुट मैक्स, ओके, डिवाइड बाय 1 किलो ओम। ये करंट हो गया, दिस माइनस दिस करंट हो गया। अब ये करंट यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट जा रहा है, उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया V केस में, तो इसको ये बैटरी से रिप्लेस हो गया, बैटरी से। तो अभी क्या हो जाएगा, V आउट मैक्स, ओके, माइनस 0.7 दे का 5 दे का 0.7 दे रखा है, ठीक है। तो ये करंट कितना हो जाएगा, V आउट, और ये कितना हो गया 2 + 0.7, ओके, V आउट -2.7 अपॉन 1 किलो ओम, या वो करंट दे देगा। दोनों करंट सेम होने चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई। ये पहले ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्किट है, इसमें मैंने लगा दिया KVL, और KVL निकाल के मैंने करंट निकाल दिया I। सो करंट I इज 5 माइनस V आउट अपॉन 1 किलो, ठीक है। अब ये सेम करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने KVL लगा दिया, V आउटपुट, ओके, V आउट, ये माइनस V आउटपुट प्लस 0.7 + 2 + 2, तो V आउटपुट माइनस 2.7 डिवाइड बाय 1 किलो ओम, या करंट आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। सर हाँ सर, यहाँ पर हम कैसे मतलब ये जो डायोड हाँ वो जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है वो हाँ कैसे हम भी 2 वोल्ट से रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है, 2 वोल्ट से हाँ, रिवर्स बायस 2 हो रहा है। वोल्ट तो वो 2 वोल्ट से ज्यादा, हाँ, ज्यादा होता ही वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हाँ वो ज्यादा हो गए, वो हम कैसे कंफर्म कर। तो इसको ओपन करके निकाल के देख लो एक बार, ओपन करके निकाल के देख लो। ओ सॉरी सर, वो 2.5 वोल्ट होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, सो अभी सर प्लीज एक्सप्लेन करें कैसा फॉरवर्ड बायस इस केस में ओपन करके। अच्छा, अब ये ओपन है, ठीक है। अब ओपन करने पे इस पे कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है पॉजिटिव केस में, मैक्सिमम कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आएगा ना, 5 वोल्ट हो रहा है। उसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस, उस केस में फॉरवर्ड बायस ही है, ठीक है। तो आप इसको रिवर्स तो मान नहीं सकते हो, तो ये फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा इसको, 0.7 से ज्यादा ही है। सर आइडियल वो लिया है क्या, वो 0.7 लिया है, 0.7, ठीक है। सर बट ये 1 किलो ओम क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है सर वहाँ पे, तो हाँ 2 है ना, यहाँ पे भी है, फिर 2 किलो ओम होगा ना सर।
नहीं नहीं बी, हम पहले ये वाला लूप ले रहे हैं, इधर वाला, यहाँ से स्टार्ट किया या खत्म किया, ठीक है, इसमें करंट निकाला, ठीक है, वी करंट कैसे निकालेंगे, वी इनपुट मैक्स 5 माइनस प्लस 5, ओके, आई इंटू आर, ओके, फिर ये प्लस वी आउटपुट जो भी मिनिमम, तो इससे इक्वेशन आ जाएगा इक्वल टू 0, तो इससे आई क्या आ जाएगा 5 माइनस वी आउट अपॉन आर इज 1 किलो ओम, तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन यहाँ बना लेंगे हम लोग, वी आउट, ओके, माइनस वी आउट प्लस 2.7 हो गया, ठीक है, समझ आ गया ना। आंसर कितना आ रहा है? हाँ, अब तुम बताओ आंसर निकाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है मेरा। 3.85 वी आउटपुट आ रहा है मेरा 3.85, यस सर 3.85। ओके, तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। सो ये क्वेश्चन में पूछा था कि आपका जो वी आउटपुट है उसका मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू कितना है वो निकाल के बताओ, ठीक है, तो ये उसमें आंसर दे रखा था, ओके। सो और क्वेश्चन करने थे बट कोई मतलब नहीं, सेम ही, ठीक है। तुम भी अब बाकी जो एग्जाम के क्वेश्चंस है उसको करके देखो, डायोड में तो क्वेश्चन सेम ही आते हैं, तो अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और फ्यूचर में जो आएंगे उसको भी हमको प्लान करना पड़ेगा। तो वंस, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जो एग्जाम में वो उसमें एक कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, डायोड और ओपेम को साथ में कर दिया, डायोड ओपेम और ट्रांजिस्टर को साथ में कर दिया, ट्रांजिस्टर और डायोड को साथ में कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, डायोड केस, ट्रांजिस्टर केस और ओपेम, ओके। फिर जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे फिर हम मिसलिनियस सर्किट्स करेंगे, इन तीनों के प्रॉपर्टीज को मिक्स करके जो भी हमसे हो जाएगा, मतलब हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर में क्वेश्चन जो नहीं भी आए हैं, मतलब एग्जाम से थोड़ा लेवल ऊपर रखेंगे हम लोग, जो एग्जाम में नहीं आया उससे भी थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एग्जाम में आए वो हमारे लिए फिर आसान हो जाए, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।